Good morning, dear students. Now we will discuss in this matter the guiding values of the Constitution. Guiding values means what is ideological and philosophical value of the Constitution. And whenever we will discuss about the guiding values and philosophy of the Constitution, the two names will come in our discussion. The first name is M.K. Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, and then second is Dr. Bhimrao Ambedkar. Mahatma Gandhi always emphasized the social, rural culture and social upliftment and village. He liked too much rural area. He was not in a position to accept to any industrialization and urban culture. And second, Dr. Bhimrao Ambedkar was strongly opposed to the Gandhian view because of his opinion was against Mahatma Gandhi, and he was failed to eliminate the untouchability from society. But I think Mr. Gandhi is not solely responsible, and Mr. Gandhi should not be blamed. He took so many efforts to eliminate such social inequality. Yet after all, Constitution mentioned in Article 16, untouchability is a punishable offense. After all, after 1980, so many societies, it has been identified. Untouchability was there, but now I think 2020, now there should not be any untouchable society in India. But their own views, their own opinions in guiding values of the Constitution, one matter, and one matter belongs to Jawaharlal Nehru, who always emphasized for the industrialization and urbanization. And the second is the philosophy of the Constitution, values embodied in preamble. It contains the whole philosophy on which the entire Constitution is based. The philosophy of Constitution is the main theme or important theme which refers to the broadness of our Constitution, broad thoughts of our Constitution. It contains the whole philosophy on which the entire Constitution is based. First starting, we, the people of India, sovereign, socialist, secular, democratic, justice, liberty and equality. Now, I am going to discuss with you about sovereign, we the people of India. What is the mean? So we the people of India means we the people of India represent, यानी हम भारत के लोग, भारत के नागरिक हैं जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यह संविधान हमने बनाया है, किसी राजा रजवाड़े या किसी ऐसे लोगों ने नहीं बनाया। इसलिए भारत के संविधान को भारत के लोगों को समर्पित किया जाता है। ये कहने की बात यहाँ पर यह है कि जो भी लोग हैं वो सब इक्वल हैं। जिन्होंने भी संविधान का निर्माण किया वो सभी लोग सोसाइटी में इक्वल हैं। सॉवरेन का मतलब होता है एक ऐसा देश, एक ऐसा समाज या एक ऐसा देश जो कोई भी काम करने से पहले कभी भी देश के बाहर के किसी भी परिस्थिति को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। यानी हमारा कंट्री सॉवरेन है। सॉवरेन का अर्थ ये हुआ कि हम संप्रभु हैं, हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं और हमारे निर्णय में किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। थर्ड है आपका सोशलिस्ट, समाजवाद, यानी हम समाजवाद को मानते हैं, समाजवाद को अपनाते हैं। इस समाजवाद का अर्थ हुआ कि जितने भी
सरकारी जो भी उपक्रम है, जो भी चीज़ें हैं, उसमें सबकी हिस्सेदारी बराबर है, सबको एक समान नज़र से देखा जाएगा। इसी को समाजवाद कहा जाता है। ऐसा हो सकता है कि देश में कोई खरबपति हो, किसी के पास उतना रुपया नहीं हो, लेकिन उससे सरकार टैक्स लेती है और उस टैक्स को लेके फिर लोगों के ही भलाई के लिए काम करती है। इसीलिए इसको समाजवाद, सोशलिस्ट कहा गया। सेक्युलर का अर्थ यह होता है जब किसी देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है। ऑफिशियल रिलीजन का मतलब ही ये हुआ कि जब किसी देश में कोई भी धर्म, कोई भी किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा नहीं दिया जाता है, उस देश में सभी लोग एक समान नज़र से देखे जाते हैं, तो वो देश सेक्युलर माना जाता है। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, यानी अब इस देश में मुगलों के शासन के बाद अंग्रेज़ों का शासन रहा। अंग्रेज़ों के शासन के बाद जब शासन देश की जनता के हाथ में आया, तो इसका मतलब हुआ कि अब जो लोग चुने जाएंगे वो लोकतंत्र आधारित होंगे, यानी जनता वोट देकर जिसको चुन के लाएगी वही शासन करेगा, कोई दूसरा शासन नहीं कर सकता है। रिपब्लिक का अर्थ ये होता है कि हमारे देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो हमेशा चुन के आएगा, उसको कोई व्यक्ति विशेष, राजा, राज परिवार या फिर किसी ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले, किंग या मोनार्की, ये सब से उसका कोई ताल्लुकात नहीं होगा। कोई भी पद वंशानुगत नहीं होगा। जो भी लोग आएंगे वो चुन के आएंगे, वो इलेक्टेड होंगे, सेलेक्टेड कोई भी अब नहीं होगा। जस्टिस, न्याय की व्यवस्था सबके लिए एक समान हो। अगर कोई फार्मर है, अगर कोई पुअर है, अगर कोई बैरिस्टर है या कोई प्राइम मिनिस्टर है, जिसने भी जो क्राइम किया, बैरिस्टर, प्राइम मिनिस्टर टू फार्मर और पुअर, सबको एक तरह की सज़ा दी जाएगी। किसी के लिए हिंदुस्तान के संविधान में कोई विशेष सुविधा का प्रावधान नहीं है। तो ये दर्शाता है कि संविधान सबके लिए एक समान है, यानी एक पिता के अगर 4 पुत्र हों तो चारों के प्रति एक समान व्यवहार रखना ही वो न्याय के संदर्भ में देखा जाता है। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, आपको अपनी स्वतंत्रता है। देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा कि स्वतंत्रता का अर्थ ये होता है कि आप स्वतंत्र हैं। ये 2 तरह की बातें इसमें आती है। एक है क्या कि आपकी स्वतंत्रता किसी दूसरे को हार्म नहीं करे, किसी दूसरे के लिए परेशानी का कारण नहीं बने। आप स्वतंत्र हैं, ये बात सही है, लेकिन आप अपनी स्वतंत्रता को अपने दायरे में रखें। आपकी जो स्वतंत्रता है, आप उससे किसी दूसरे को किसी भी कीमत पर हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। आपको जो भी करना है, आप अपनी भलाई को देखते हुए आप स्वतंत्र तरीके से कर सकते हैं। आपको पढ़ाई लिखाई करना है, आप कीजिए। आपको कोई बिजनेस करना है, आप कीजिए। वो आपके ऊपर अब कोई ऐसा रेसिस्टेंस नहीं, कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ करता था कि आप अभी खेत में काम करके आए हैं, वो आया लेके चला गया, बोल रहा है कि अब जाके खदान कर्मचारी में काम कीजिए, और काम करते करते लोग 3 दिन से काम कर रहे हैं, उनको घर आने की छूट नहीं है। ये चीज़ अब नहीं है। अब आप अपने तरीके से जी सकते हैं, अपने तरीके से रह सकते हैं। इसी को लिबर्टी कहा जाता है। इक्वलिटी मतलब समानता, यानी अब ये कोई भी नहीं कह सकता है किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी समाज में हर एक आदमी व्यक्तिगत रूप से एक मानव है, किसी जाति, धर्म और समुदाय का नहीं है। सबके लिए एक समान सिस्टम, एक समान रूल और एक समान कानून की व्यवस्थाएं रखी गई है। इसी को कहा जाता है इक्वलिटी। Now your next topic is the institutional arrangement, and last topic in the constitutional design is the institutional design. And in this topic we will discuss about the constitutional amendments and why do we need it, and put the limits on the powers of the government. One question you have to face: what is the necessary to amend the constitution? Constitution was adopted on 26th January 1950. More than 70 years have passed, and above 100 times Constitution was amended. तो why? तो एक बात यहाँ आपको समझनी पड़ेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में संशोधन हमेशा आवश्यक है।
आज से 50 साल 60 साल पहले जो समाज था वो आज नहीं है, और आज से 50 साल बाद जो समाज होगा वो आज के जैसा नहीं होगा। तो क्या 50 साल पहले लिखा गया संविधान ये कि अगले 50 साल तक चलता रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता। प्रावधान नहीं बदले जाते हैं, लेकिन उसके तौर तरीके और सिटीजन्स के राइट को बहुत हद तक सुधार किया जाता है और बहुत हद तक नए अधिकारों को लाया जाता है। एक बात देखिए आप, जिस समय संविधान बना था उस समय आपका कंप्यूटर नहीं था, तो कंप्यूटर नहीं था, लेकिन इंडिया में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में 3 लिस्ट दिए गए, सेंट्रल लिस्ट यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब देखिए कि कंप्यूटर किसी लिस्ट में नहीं है, न सेंट्रल में है, न कंकरेंट में है, न स्टेट में है, ये रेसिडुअरी सब्जेक्ट हो गया है। तो इसीलिए समय के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। जिस तरह से वहाँ लिस्ट में उसका प्रावधान नहीं है, आने वाले समय में फिर वक्त बदलेगा तो फिर क्या होगा। इसीलिए संविधान का संशोधन करना बहुत ही आवश्यक है। इसी चीज़ को हम इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में देखते हैं और किस तरह से सरकार के पावर को लिमिट में रखा जाता है। देखिए हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो या कोई भी मंत्री हो या एक साधारण व्यक्ति हो, लेकिन सरकार चाह के भी किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी धर्म और किसी समुदाय के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान में संविधान का शासन है। यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री शासन नहीं करता है व्यक्तिगत रूप से, संविधान के द्वारा दिए गए कानून व्यवस्था के अंतर्गत वो शासन करता है। इसलिए ये संविधान उन लोगों के, उन सरकारी अफसरों, सरकारों के पावर को भी लिमिट करता है। हम इस बात का, इसमें हम इस चीज़ को देखते हैं। थैंक यू।